أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله الذي وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد سے پیار کرتے ہیں، یہ تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا وسیع سامان ہے مولا. در شاہی مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا. تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے. تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. اونچا ہوا کچھ اور بھی معیار صحابہ، صدیق بنائے گئے سالار صحابہ. سرکار کے اصحاب ہیں انصار محمد، سب شکر کہ ہم لوگ ہیں انصار صحابہ. بس بس یہ اگر اور مگر اور چنانچہ، ہم سے نہ سنا جائے گا انکار صحابہ. اب لوگ ہمیں دیکھ کے کہہ اٹھتے ہیں نادر، لوگ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ. اسلام میں اول ہے علی ہوں کہ ابو بکر، سلطان خلافت ہے مگر چونکہ ابو بکر. بیٹے تیری بیٹی کے ملازم تیرے گھر کے، ہم لوگ بھکاری تیرے ٹکڑوں کے ابو بکر. ہم لوگ غلامان غلامان غلاماں، نسلوں سے ہیں نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر. کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ، جھوٹوں کے ابو جہل ہیں سچوں کے ابو بکر. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. واجب احترام باعث احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء اکرام، معززین علاقہ مائدین شہر، نیچے والا تحصیل میں چنو ضلع خانیوال کے غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے شہر وزیر والا کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ عبداللہ بن مسعود میں تکمیل حفظ قرآن و دستار فضیلت کے عنوان سے معزز اس بابرکت بارونہ گروپ پرور محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعا ہے اللہ کے عالم مجھنا چیز پر سچ کے لیے توفیق عطا فرمائے. اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس مدرسے کے محترم عزت مآب محترم جناب حضرت سید شفیع الرحمان شاہ صاحب رحمۃ برکاتہ عالیہ اور محترم جناب مولوی صدیق اکبر فاروقی صاحب جن کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا. اسٹیج پر ہمارے بھائی حضرت عزت مآب محترم جناب بھائی عبدالوحید انجم صاحب، قاری عالم مدنی صاحب اور دیگر کے فقہ دوست احباب، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا مجھ سے پہلے ایک دستار بندی کا عمل کا ہوگا اور اساتذہ نے، علماء نے، بزرگوں نے بچوں کے سروں پر دستار سجائی ہوگی. یہ ایک بہت بڑا بابرکت عمل تھا کہ ان بچوں کے سروں پر دستار سجا کر دستار رکھنے والے یہ بتا رہے تھے اب یہ بچہ معمولی نہ رہا، اب یہ بچہ عام نہ رہا، اب یہ بچہ چھوٹا نہ رہا، بلکہ قرآن کی وجہ سے بڑا ہو گیا، نبی کے فرمان کی وجہ سے بہت بڑا ہو گیا. اب اس بچے کا احترام ہم پر لازم ہو گیا. سعودی عرب کے اندر ایک بزرگ گزرے، دنیا سے چلے گئے.
जन्नतुल बकी में इंतकाल के बाद कब्र की जगह मिली। बड़े एजाज़ की बात है, 3 महीने के बाद कब्र को खोला हुकूमत ने, तो देखकर हैरान हुए कि कफन भी सलामत था, बुजुर्गों का जिस्म भी सलामत था। पूछने वालों ने पूछा ये क्या है? 3 महीने के बाद फिर कब्र को खोला तो फिर भी कफन सलामत था और जिस्म सलामत था। 9 महीने के बाद तीसरी मरतबा कब्र को खोला तो हैरान रह गए, कफन भी सलामत था और जिस्म भी सलामत था। पूछने वालों ने पूछा इन बुजुर्गों का कोई अमल तो बताओ, इनका कोई खास नेक अमल बताओ जिसकी बदौलत अल्लाह ने कब्र में ये एजाज़ दिया कि कफन भी सलामत है और जिस्म भी सलामत है। तो जवाब देने वाली औलाद ने जवाब में कहा, हमारे अब्बा जान के अंदर एक ऐसा अमल था जो हमने हर किसी में ना देखा। अमल ये था कि अब्बा जान अगर कमरे में बैठे होते, कोई हाफिज़ कुरान बच्चा कमरे में आ जाता, अब्बा जान लेटे होते तो उठकर बैठ जाते, टांगे फैला के बैठे होते तो लपेट लेते, टेक लगा के बैठे होते तो आगे होके बैठ जाते। हमने कई मरतबा कहा, अब्बा जान आप हाफिज़ भी हैं, आप आलिम भी हैं, आप बुजुर्ग भी हैं, आप अल्लाह वाले भी हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए आप अपने बैठने की कैफियत बदल देते हैं। कोई बच्चा कमरे में आए आप उठ के बैठ जाते हैं, बच्चा आए तो टांगे लपेट लेते हैं, बच्चा आए तो टेक हटा कर बैठ जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो अब्बा जान जवाब में कहा करते थे, बेटा एहतराम बच्चे का नहीं करता, उसके सीने में रहने वाली किताब कुरान का करता हूँ। यानी कुरान मजीद का एहतराम 1500 साल के बाद कोई बुजुर्ग कुरान का एहतराम करे, कुरान वाले बच्चे का एहतराम करे। अल्लाह कब्र में कफन मैला नहीं होने देता, जिस्म मट्टी मट्टी होने नहीं देता। जिस सीने में कुरान आ जाए, जिस ज़बान पे कुरान जारी हो जाए, जिस 4 दीवारी में कुरान पढ़ाया जाए, जहाँ बैठकर सुबह शाम कुरान की आवाज़ें लगे, वो जगह बरकत वाली, वो 4 दीवारी बरकत वाली, वो अहाता बरकत वाला, वो लोग बरकत वाले। बात मैं करूँ तो एतराज़ हो सकता है, बात कोई वली करे तो एतराज़ किया जा सकता है, बात कोई बुजुर्ग करे तो एतराज़ किया जा सकता है, बात किसी वजीर की हो तो एतराज़ हो सकता है, बात सदर की हो तो एतराज़ हो सकता है। लोगों बात हमारी है नहीं, अब तो बात हमसे बहुत आगे तक पहुँच गई है और बात है इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुजूर फरमा रहे हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। लोगों बेहतरीन लोग देखना चाहते हो, अच्छा इंसान देखना चाहते हो, अच्छा बंदा देखना चाहते हो, अच्छा बच्चा देखना चाहते हो, अच्छा बुजुर्ग देखना चाहते हो, किसी में अच्छाई तलाश करना चाहते हो, किसी को बेहतरीन होने का सर्टिफिकेट देना चाहते हो, किसी को नेकी की जमानत देना चाहते हो, अपनी जबान से किसी को कहना चाहते हो ये बेहतरीन है, ये अच्छा है, ये बाकमाल है, ये बेमिसाल है, ये अनमोल है, ये लाजवाब है, तो मैं मोहम्मद की सुनो, मैं मोहम्मद कह रहा हूँ। यानी मोहम्मद नहीं, रसूलुल्लाह की ज़बान पे खालिक के कायनात कह रहे हैं कि इस कायनात में बेहतर देखना चाहते हो, अच्छा देखना चाहते हो, आला देखना चाहते हो, अजीम देखना चाहते हो, बाकमाल देखना चाहते हो, बेमिसाल देखना चाहते हो। हुजूर के फरमान में देखो, हुजूर कह रहे हैं कि इस कायनात का सबसे बेहतरीन कोई तबका है, सबसे बेहतरीन कोई ग्रोह है, सबसे बेहतरीन कोई जमात है। अगर बेहतरीन लोग हैं तो भाई वो कुरान वाले हैं, वो कुरान पढ़ने वाले हैं, वो कुरान पढ़ाने वाले। सवाल पैदा हो गया, अल्लाह आलिम की शान कम है, मुफ्ती की शान कम है, शेखुल हदीस की शान कम है, वली की शान कम है, अल्लाह वालों की शान कम है, औलिया की शान कम है, अकाबिर की शान कम है। अल्लाह फरमाते, अल्लाह के नबी कहते हैं, ना ना, हर किसी की शान अपनी जगह पर, हर किसी का मकाम अपनी जगह पर, हर किसी की हैसियत अपनी जगह पर, हर किसी की अजमत अपनी जगह पर, लेकिन फैसला खुदा ने किया, फैसला सुनाया मुस्तफा ने। बेहतरीन कुरान वाला है, कुरान पढ़ने वाला भी बेहतरीन है, कुरान पढ़ाने वाला भी बेहतरीन है। दुनिया को ये पैगाम क्यों दिया गया? मैं बड़ी गौर और फिक्र के साथ जब इस वाक़ये में तवज्जो करके मुतज़न हुआ तो मुझे ये बात समझ आई कि मौलवी साहब अल्लाह इस मिसाल को यूं इसलिए बयान कर रहे हैं, नबी का फरमान यहाँ इसलिए मौजूद है। रब को पता था एक जमाने में लोग पैदा होंगे कुरान वालों की कदर नहीं करेंगे, रब को पता था एक दौर में लोग पैदा होंगे कुरान वालों को अच्छा नहीं समझेंगे, रब को पता था एक जमाने में लोग पैदा होंगे कुरान वालों पे तराश करेंगे, रब को पता था एक जमाने में लोग पैदा होंगे कुरान वालों को हकारत की निगाह से देखेंगे, मौलवी का मजाक उड़ाएंगे, इसे बुरा भला कहा जाएगा, इस पर तनकीद की जाएगी, इस पर एतराज किया जाएगा, अपनी जबान से इसे कई कई अल्फाजों में याद किया जाएगा। रब ने इसलिए कहा अगर वो बंदा मेरा होगा, मेरा हया करेगा, मेरे नबी के फरमान का हया करेगा, कुरान वालों का भी एहतराम करेगा, कुरान का भी एहतराम करेगा,
सितारों से भी पहले की है या नहीं है? कुरान आज का है? नहीं, 3 बंदे बोल रहे हैं। कुरान आज का है? बोलो, जोर से बोलो। कुरान आज का है? रब का फरमान आज है? नबी ने ऐलान आज किया है? हमें पता चला 1500 साल पहले, लेकिन कुरान था आदम से भी पहले। हमें पता चला जब कुरान जिब्रील लेकर आमना के लाल के कल्बे अथर पर पहुंचे। हमें पता चला जब नबी ने ज़बान से कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हमें पता चला जब नबी ने फरआन की चोटी से ऐलान किया। हमें पता चला जब नबी ने बैतुल्लाह के साए में बैठकर कुरान पढ़ा। लेकिन तुम्हारे पता होने से या मेरे पता होने से क्या होता है? कुरान तो उस वक्त भी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी में थे। कुरान भी आज का नहीं, कुरान वाले भी आज के। जोर से और जोर से लोगों, जिस तरह कुरान की अजमत का तायुन 1500 साल पहले से है, इसी तरह कुरान वाले की अजमत का तायुन भी 1500 साल पहले से है। 1500 साल 1500 साल। भाई हम कुरान वालों की इज्जत ना करें तो क्या होगा? इनकी इज्जत खुदा ने की है। हमारे करने ना करने से इनकी इज्जतों में कमी नहीं आ सकती है। इनकी इज्जत खुदा ने की है, इनकी इज्जत मुस्तफा ने की है। अल्लाह के नबी का फरमान है, उठाओ हदीस मुबारका, अगर किसी और के कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाएं, मुझे दिखाओ। ये एजाज अगर किसी के हिस्से में आया तो उसे कुरान वाले कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आज बच्चों के सर पे दस्तार रखी गई। दस्तार रखने वाले जब अब्बा के इंतकाल के बाद बेटे के सर पे रखते हैं ना, तो कहते हैं ये अब्बा का जानशीन है। क्या कहते हैं? ये अब्बा का। दो से ये अब्बा का। बड़े भाई के बाद जब छोटे के सर पे रखी जाए तो ये बड़े का जानशीन है। इलाके में किसी नंबरदार के सर पे रखी जाए तो ये नंबरदार इलाके वालों का वडेरा है। किसी चेयरमैन के सर पे रखी जाए तो ये चेयरमैन इलाके का बड़ा है। किसी बड़े आदमी के सर पे रखी जाए, उसकी निस्बतों का तायुन करते जाओ, इजाफा होता चला जाता है, बढ़ती चली जाती है। मैंने कहा कुरान आया रसूलुल्लाह से है, फरमान आया रसूलुल्लाह से है, कलाम आया रसूलुल्लाह से है, पैगाम आया रसूलुल्लाह से है, बात आई रसूलुल्लाह से। फिर मुझे कहने दो, आज जिनके सरों पे तुमने दस्तार रखी है, इनका ताल्लुक अब्बा भाई वडेरे नंबरदार चेयरमैन से नहीं, इनका ताल्लुक मुस्तफा से। नाराए तकबीर, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, हज़रत मौलाना अबू बकर फारूकी साहब। इनकी इज्जत तू मैं नहीं करेंगे, खुदा करवाएगा। खुदा करवाएगा। मजबूरी है, रमजान आ रहा है। दिया मजबूरी है, रमजान आ रहा है। इन्हें ना मानने वाला इशा के बाद पीछे खड़ा होगा, नहीं मानेगा, इनकार करेगा, इख्तलाफ करेगा। इनके बगैर नमाज नहीं होगी। इनके बगैर नमाज नहीं होगी। दूर से हाँ, किसी की हो जाती होगी, हमारी नहीं होती। हमारी लोगों, कुरान वालों को बुरा ना कहा करो, कुरान वालों पे एतराज ना किया करो। तेरी नजर में जितना गंदा हो, रब की नजर में पसंदीदा है। सुभान अल्लाह। तेरी नजर में जितना बुरा हो, रब पसंद कर चुका है। तेरी नजर में जितना बड़ा हो, तू किसी की गलती अपनी। इतनी बड़ी किताब है, अल्लाह ने ये किताब आदम को न दी। बड़े थे, किताब न मिली। नूह अलैहिस्सलाम पहले थे, किताब न मिली। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बड़े अजीम थे, किताब न मिली। मूसा अलैहिस्सलाम की तो बात ही क्या है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो अज़मत ही क्या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने इम्तिहानात दिए, किताब न मिली। ईसा अलैहिस्सलाम ने इतना वक्त गुजारा, इम्तिहानात दिए, किताब न मिली। किताब उसे मिली जो पहले नहीं आखिरी थे।
किताब उसे मिली जो पहले नहीं आखिरी थे और आखिर में भी सबसे छोटे थे, सबसे अजमत की बात ही नहीं हो रही, बात उम्र की हो रही है, बात दौर की हो रही है, बात जमाने की हो रही है। मुस्तफ़ा का जमाना भी कम, मुस्तफ़ा का वक्त भी कम, नबूवत का दौर भी कम, उम्र भी कुरान मोहम्मद के हवाले किया गया, कुरान रसूलुल्लाह के हवाले किया गया। अल्लाह सवाल पैदा होता है, इतने बड़े बड़े आए 900 साल तक रहे, कुरान न मिला, 900 साल तक रहे, कुरान न मिला, 400 साल रहे, कुरान न मिला, 150 साल रहे, कुरान न मिला, 100 साल के लिए आए, कुरान न मिला। अल्लाह फरमाते हैं कुरान के लिए बड़ी उम्र का होना जरूरी नहीं, कुरान के लिए बड़े जमाने का होना जरूरी नहीं, कुरान के लिए बड़े दौर का होना जरूरी नहीं, कुरान के लिए ज्यादा दुनिया में